Hello there from Amethi Lok Sabha constituency. Now, this is the constituency which is garnering all the limelight for all the good reasons, bad reasons. But as of now, we are standing at the iconic Gandhi Chowk in Amethi. There is a Gandhi statue and there is a mosque as well right adjacent to that. And quite a hustling, bustling place of Amethi, which obviously was formed in 1967 during the delimitation of the parliamentary seats. The people who are contesting here need no introduction. Smriti Irani, the BJP candidate from here, a sitting MP also, is pitted against Kishori Lal Sharma from Congress, who was instrumental in the victory of Sonia Gandhi in the year of 1999. And since 1983, he has been into active politics and contributing a lot to the success of the Congress party. Remember, Amethi and Raebareli are two twin cities, basically, which have always been the Gandhi's bastion. But last year in 2019, we saw how Smriti Irani uprooted Rahul Gandhi from here, and Rahul Gandhi contested from Wayanad as well. This time around, Rahul Gandhi is contesting from Raebareli, which many say is a safe seat for him. Needless to say, the kind of contest that we are witnessing here is something that is being eagerly anticipated, and June 4th will be the time when this place would know whether Smriti Irani has been able to retain and wrest control of this city, or is it the Congress's ML Sharma, or for that matter, the Bahujan Samajwadi Party's Nanne Singh Chauhan, who is representing the OBC Nonia community, whether he is able to win the requisite number of votes in order to get the control of this constituency. Interesting times here in Amethi, and it's almost 9:30 here in the evening, but the place refuses to fall silent, and people still going about their daily job and daily affairs. And what an activity it is. From this Chauraha Chowk itself, we saw so many political cavalcades also going through. Let's speak to the people here and what they think about it. आइए जानते हैं अमेठी के लोगों से किस तरह की हवा यहाँ पर चल रही है, कैसे यहाँ पर 20 मई को जब चुनाव होगा तो क्या वातावरण रहने वाला है, बताएं। पान पर अच्छा, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लोगों का हुजूम जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि 20 तारीख को वोटिंग भी जबरदस्त होने वाली है? हाँ भैया, वोटिंग जो है जबरदस्त होगा। अच्छा, ठीक है। बीजेपी अभी यहाँ पर सिटिंग एमपी है यहाँ पर स्मृति जी, क्या उम्मीदें हैं उनसे और क्या लग रहा है, रिटेन कर लेंगे? अब स्मृति ईरानी जी देखिए मेहनत कर रही हैं। अच्छा, और उन्होंने विकास भी किया हुआ है। अच्छा, हाँ, विकास किया है, इसलिए जो है भारी वोटों से जो है उनको अमेठी जनता जो है विजय जो है बनाएगी। अच्छा, और जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, पहले यहाँ से चुनाव लड़ते थे, फिर चले गए रायबरेली, तो अभी भी कह रहे हैं कि भाग के चले गए, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, उनको पता था कि यहाँ से जो है वो जीतेंगे नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने जो काम स्मृति ईरानी ने किया है, मतलब अच्छा काम किया है। देखिए, पहले यहाँ लाइट के लिए जो है पहले कितना धरना प्रदर्शन हम लोग देते थे। जी जी, हाँ, लाइट वगैरह बिजली के लिए बहुत धरना प्रदर्शन हम लोगों ने दिया। ठीक है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, हाँ, तब से बिजली वगैरह जो है बढ़िया मिल रहा है। तो लस्सी की जो मिठास है, 20 मई को जब यहाँ पर वोटिंग होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो हवा किधर लग रहा है? 200 गिलास बोल चुके हैं हम ऑर्डर। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस जीत रही है कम से कम 2.5 लाख वोट से। अरे वाह, तो 200 गिलास बोले? 200 गिलास और बोल देते 2000 गिलास बोल 2000 गोल। हमारी चलिए, बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कांग्रेस यहाँ का क्या जो मुद्दा क्या लग बाईपास रहा है? और ये ओवर ब्रिज सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, हाँ, तो राशन वासन सब कांग्रेस की देन। खाली क्या बीजेपी जीत गई तो उन्हीं के उसमें बांट रहे हैं बस। तो जिताया भी आप ही लोगों ने, वैसे तो जिताया उन्हीं लोगों ने। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, कांग्रेस आएगी तो उम्मीदें इस पर क्या है? बहुत सारा उन्होंने न्याय जो महिलाओं हम लोग नहीं कह रहे हैं, यहाँ का मेडिक प्रॉपर नहीं कह, गाँव देहात में जाइए तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। क्या क्या लग रहा है इस बार? भैया बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी इधर, दो भाई साहब ने कहा। ये पुराना गढ़ है, कांग्रेस यहाँ जीतेगी। तो राहुल जी नहीं लड़े यहाँ से? ये तो उनका निजी मामला है, निजी मामला, क्या करें, वो बड़े नेता हैं। जी जी, निजी मामला है, लेकिन जो उनको भेजे हैं वो अपने
कैंडिडेट को हम लोग उनका समर्थन पूरी जनता कर रही है। शर्मा जी जो हैं, किशोरी लाल जी, लोग आदमी है, वो 40 साल से अमेठी देते हैं। जी जी राजू जी, जी के जमाने से वो अमेठी देते हैं। हम लोगों का बचपना था। हाँ, ये हाँ। जो बाईपास है, ये बना है, सब राजीव गांधी के समय, संजय गांधी के नक्शा हुआ है। कॉलेज वालेज भी खुलवाए थे क्या आसपास? यहाँ पे सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। उसके बाद राजा साहब का कॉलेज है। यहाँ जो है राजा साहब का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये प्राइवेट है, राजा साहब का निजी है। यंग वोटर्स भी हमारे साथ हैं, कैसे हैं? वोट देते हैं आप? हाँ, इस बार मेरा पहला वोट आएगा। अरे फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। बहुत बड़ी संख्या भी है फर्स्ट टाइम वोटर्स की, और बड़ी उम्मीदें भी रहती है, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज खत्म करके जॉब के लिए जाएंगे, आपको हायर एजुकेशन के लिए भी सुविधा चाहिए होती है। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलती रहती है, लेकिन इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है? जी जी, इस बार तो हमें लग रहा है कि इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे जो लोकसभा में है, हर चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं, और अमेठी में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। फिलहाल तो हम पढ़ाई इलाहाबाद में करते हैं, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे ये है कि चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसे धीरे धीरे सुधार आ रही हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहता है लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ इस बार आपको जनरली, आप इलाहाबाद रहते हैं, वहां से आते भी होंगे, अमेठी रायबरेली से होते गुजरते हैं मान लीजिए, तो क्या लग रहा है? अभी हम लोग ऊंचाहार से आए, वहाँ प्रियंका जी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया हम 1 लाख रुपए दे देंगे सब लोगों को, तो आपको लगता है कि पैसे देने से कहीं बात बनती है या कुछ करना होगा? नहीं, सब पैसे, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से कुछ नहीं होना है। जो एक काम करके एक चीज़ें हो सकती हैं, वो पैसे देने से नहीं होंगी। नहीं होगी। हाँ। चलिए, स्थायी तौर पर काम करने की जरूरत है। वेरी क्लियर थॉट हियर ऑफ द यूथ ऑफ अमेठी। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या लगता है आपको, अगर विकास को लेकर जब बात होती है और चुनावी मुद्दे होते हैं शुरू में, तो उस पर लोग सरकार चुन तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे 2-4 चरण हो गया है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम भी आ जाता है, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, उसमें फिर पर्सनल भी छींटाकशी होने लगती है। इसको लेके कैसा देखते हैं आप? हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि हम सब एक हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बिल्कुल, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं, हमारे भाईजान लोग हैं, सब हैं, सब हम एक हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव नहीं करना। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है? हमारा कुछ नहीं कहना है, कांग्रेस सबकी आएगी बस। कांग्रेस आएगी? अमेठी शहर में भी बदलाव की हवा। इट्स अ मिक्स्ड क्राउड हियर, एंड राइट देयर इज अ गांधी स्टैचू, एंड आई एम श्योर व्हेन महात्मा गांधी looks at the changing aspects of democracy here in India, especially in Amethi, which has been making headlines since I started understanding elections, and many thousands and lakhs of people who have been following politics. Amethi and Raebareli are two states, I would say, after Bihar, that really shaped the Indian polity. Many prime ministers have come here, especially from the Congress. Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Sonia Gandhi has also been winning from, has contested from here. And needless to say, the Gandhi family passion has been quite a sensation here. Let's see how the cookie crumbles on 20th of May, and 4th of June is when the results will be out.